गुड इवनिंग यू ऑल। सारे लोग आ गए हैं या कोई बाकी भी है? ओके, सो व्हाट we were doing sound, and as I had told you all that whenever we just finish a lecture, we finish a class, you must send your homework. So some of you have not sent me your homework on my WhatsApp, so please send me. At least I should know now how much you are getting, understand how much you are learning. Am I on the right track or not? So you have to send it, and if you have sent it earlier, you have to send only of today's class, and if you have not sent earlier, you have to send it by whatever two classes of 3 classes. So what was the last topic? We had done with music and noise, correct? And we had also discussed about the noise pollution as well as the steps to reduce the noise pollution. So now we will be discussing about reflection of sound. Before that, write the first topic, absorbers of sound and reflectors of sound. Thereafter, our main topic, that is what is reflection of sound. Laws of reflection of sound. And last one, applications of reflection of sound. So write it down fast. So last year when you were in class 7th or when you were in class 6, you had discussed about, you had studied about reflection of light, and you were told that whenever light comes from a medium, strikes on a surface and bounces back in the same medium, then it is called reflection of light. Here we are discussing about sound, and the same thing will be happen. However, whenever whenever you write light, you will write sound there, and there is some difference also be there. Suppose for light there should be a smooth and shiny surface, but in reflection of sound a surface should be there, a hard surface, a metallic body. Sound takes place. We will be discussing even from a wall sound takes place, reflection of sound takes place. So we will be discussing, but whenever we think about that, on that aspect, that whether the sound is being reflected by a body or it is absorbed by the body, we divide the body into two parts. Means there are two types of body. First, which are absorber of sound, and second, which are reflector of sound. That is very normal observation, that whenever sound strikes on a surface, whenever sound falls on a body, two things can be happen. First, it might be absorbed by the body, or it may be reflected by the body. Suppose if I am speaking and there is a wall, so if I am speaking, the sound is falling on that wall, colliding on that wall, then the wall will reflect that sound or the wall will absorb that sound. If the body absorbs the sound, it will be known as absorber of sound, and if the body reflects the sound, it will be known as reflector of sound. Suppose if I am speaking and the sound is falling on the wall, there is nature of the wall, as it is concrete, as it is hard, it will reflect the sound. Then the wall will be the example of reflector of sound. The wall will be example of reflector of sound. But if we talk about
just sofa set or pillow or bed or curtain or cloths. These are the soft materials and they have nature to absorb the sound. That's why they are known as absorbers of sound. In few classes we will be discussing that actually we use carpets, curtains, cloth, cover of sofa as soft materials because we need to let the sound be absorbed. Otherwise there will be multiple reflection, there will be echo and it will be difficult to listen to any speaker. So however that will be discussed in the topic reverberation. Right now we are discussing that there are two types of materials. First, absorbers of sound and second, reflectors of sound. The body which absorbs the sound will be known as absorber of sound and the body which will reflect the sound will known as reflectors of sound. If I ask you all that suppose brick is a hard material and it is a concrete material, so it will come whether in absorber or reflector. Tell me. Reflector. Definitely it will be reflector of sound. It will be reflector of sound. So brick is an example of reflector of sound. But if I ask the bed sheet is a soft material, so it will be an example of absorber of sound. So whenever you get any body which is hard, concrete, metallic, it will be reflector of sound. And whenever you observe a body which absorbs, which is soft, which is porous, it will come in absorbers of sound. So as we, sorry, yes, plants are absorber of sound. That's why I was discussing in the last class that we should plant, because they will absorb the sound, they will absorb the noise, and we could be able to reduce the noise pollution. So plants, the leaves of plants especially, are the absorber of sound. So as we are discussing about reflectors of sound, we must know that what is reflection of sound. And here we are talking about sound, so we we are not discussing about reflection of light. So as we had discussed in the light chapter, in fact here itself we will be discussing about light chapter. In fact we have to, next chapter we have as light, and there also a topic is there, that is reflection of light. So there we will be discussing about that. Here we are discussing that in reflection of light we need to take a medium, a surface which should be smooth and shiny, just like mirror. But in reflection of sound that is not required, it should be reflector only. Whatever the medium you take, just a hard or metallic surface you can take, and whenever sound falls in on this body, and this sound is suppose coming from air and bounces back in the same medium, that is air, then this natural phenomenon is called reflection of sound. There is also a topic I have not written, actually it suppose you have topic like this now, there is a topic terms related to reflection of sound. Suppose if you take it as topic 1, this is 2, this should be 4, please correct it, please write it down that there is a more topic on 3rd, terms related to reflection of sound. Please write it down guys on your copy, terms related to reflection of sound. So what I was telling, that when a sound wave strikes on a surface or on a body and reflects back in the same medium or bounces back in the same medium, then this natural phenomenon is known as reflection of sound. This is, suppose if I am speaking, there is a wall in front of me, then I am speaking, I am producing sound, the sound is going to that wall,
striking on that wall and bouncing back in the same medium, means if the sound was going from air and returning to air, this is known as reflection of sound. This is very simple, this is very easy, you have observed it, you have noticed it, you have felt it, you have experienced it, that when someone is speaking something, it goes, it strikes on the surface and you are able to listen that sound. That is reflection of sound. Means in fact you can simply define it that the bouncing back of sound is called reflection of a sound. Or you can explore it, you can expand this definition that when sound wave comes from a medium, it strikes on a surface or a body and bounces back in the same medium, then this natural phenomenon is called reflection of sound. What are the terms which are related to it? First, the sound which is coming from a medium, definitely it is coming from a source. From a musical instrument it can be produced, from a human being, from any animal, from any source, from your mobile, from your woofer, from your TV, from your laptop, whatever. So this sound which is coming from a source of sound will be known as incident sound wave. Incident sound wave. You all may remind it that you had discussed, you had studied in your class 6 or 7 in the chapter light, incident ray. In the light it was known as ray, as light is a ray, but sound we had, light is also wave. I will discuss it in the next chapter, but sound is not a ray, sound is only wave. That's why it is known as incident sound wave. And the bounce back sound wave will be known as reflected sound. Very good, reflected sound wave. It will be known as reflected sound wave. Thereafter we sketch a perpendicular, we sketch a line which is 90 degree. This is known as normal. Then we observe that there is an angle formed between incident sound wave and normal, known as angle of incidence, and represented by a small letter I. So it will be angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal will be represented by r, small r, and will be known as angle of reflection. And the point on which all the thing is happening is known as point of incidence. And this will be known as reflector. Please draw this diagram in your copy and write all the terms, and you should not forget it, because this topic is very important if we talk about your school exam. I will discuss all the thing in detail, but before that you have to draw it and label the diagram. Okay. Yes. Have you all sketched? Okay. So we'll discuss it, what all the topics are, whatever I have written. First I have written very important topic, that is incident sound wave. This is this sound wave. As we had discussed all about wave, in fact we had discussed that sound is a wave, means it is vibratory disturbance which carries energy from one point to other point without any direct contact. So if there is a source of sound, suppose there is a mobile, a smartphone is there, and you are playing a song, then sound is being produced. You are playing a song on your mobile and sound is being produced. So this sound is coming from this medium and it is striking on this surface. So the sound coming from any source of sound will be known as incident sound wave. Whenever it will strike on the surface,
it will definitely reflect back, or it will definitely bounce back. This will be known, this bounced back sound, this reflected back sound will be known as reflected sound wave. We just sketch a perpendicular on the reflector, which is known as normal. As I am discussing, as I am telling that it is perpendicular, it means that it is forming the angle of 90 degree with the surface. Thereafter, the angle between incident sound wave and normal, the angle between incident sound wave and normal will be known as angle of incidence and will be represented by a small letter I. And the angle between reflected sound wave and normal will be known as angle of reflection and will be represented by a small letter r. Please keep this in your mind that angle of incidence is represented by a small I, not capital I, and the angle of reflection will be represented by small r and not capital R. Thereafter, the point at the surface on which sound wave incidence is known as point of incidence. So these are the terms related to reflection of sound. So reflection of sound, how will you define it? When sound wave comes from a medium, it strikes on a surface or body and reflects back in the same medium, then this natural phenomenon is called reflection of sound. Again, if there is reflection, suppose you have a reflector, you have a hard surface body, and there is sound, incident sound wave, there is reflected sound wave, there is normal. Normally we just sketch normal by dotted line because we have imagined it. It is not natural. So this is, and first law of reflection is that incident sound wave, reflected sound wave and normal all lie in same plane. This is very important. I am telling that all lie in same plane. What does it mean? Same plane. It means that same surface. It means that if the incident sound wave on this medium, on this surface, reflected sound will also be on the same surface, and that is in this way. That is in this way. It is not possible. Suppose you take this example. This is a book of Shivai Academy, the most trusted brand of India. Suppose I am telling that this is in this way, and I am telling that incident sound wave is on this surface. Then reflected sound wave will also be on this surface. You cannot write, you cannot say that incident sound wave is on this surface, reflected in this. It is not possible. So please understand the meaning of what the exact meaning of the first law of motion. What the exact meaning of same plane? It means that same surface. Surface will never be changed. ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट साउंड वेव आपका बोर्ड पर है और रिफ्लेक्टेड आपका दीवार पे जा रहा है। जिस सरफेस पर इंसिडेंट साउंड वेव होगा उसी सरफेस पर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव भी होगा। दोनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, दोनों सेम सरफेस में लाई करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि जितने भी मतलब जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा हो, अगर इंसिडेंट साउंड वेव जिस सरफेस पे है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव भी उसी सरफेस पे होगा। इसी को हम लोग कहते हैं द इंसिडेंट, और नॉर्मल भी उसी प्लेन पे होगा, नॉर्मल भी कहीं और नहीं जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ आपको यह बताया जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। This is always asked in a school exam. They will give you that if this angle is 30 degree, then what will be the value of this angle? It will also be 30 degree. If this is 60 degree, then what will be the value of this angle?
Sorry, if this is 60 degree, what is the value of this angle? Okay, I am giving you 1 minute. 30 degree is correct answer. As it is 60 degree, it will also 60 degree, and as it is a normal, it is 90 degree. So if this angle is 90 and this is 60, then what will be the value of this angle? 30 degree. So यही दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ पहला लॉ ये इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, एंड सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कई जगह पे एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग 4 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेगाफोन, सेकेंड बल्ब हॉर्न, थर्ड स्टेथोस्कोप, एंड फोर्थ साउंड बोर्ड. These are the applications of reflection of sound. Reflection of sound है क्या, सब लोग समझ गए हैं? साउंड एक मीडियम से आएगा, किसी सरफेस पर, किसी बॉडी पर टकराएगा, वापस उसी मीडियम में चल जाएगा, इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं. जब साउंड एक मीडियम से आता है, सरफेस पर या बॉडी पर टकराता है, वापस उसी मीडियम में लौट जाता है, ये दो लॉ को फॉलो करता है. फर्स्ट इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा और हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. अब इसका यूज कैसे करते हैं? मेगाफोन एक ऐसा डिवाइस है, इस टाइप का डिवाइस आपने शायद नोटिस किया हो, शायद ऑब्जर्व किया हो. इस तरीके का ये होता है, जो इस तरीके का एक हैंडल इसमें लगा होता है. ये क्या है ना कि नैरो होता है एक सरफेस की तरफ, और दूसरे तरफ वो जो होता है वाइडर होता है. और क्या होता है, इससे क्या किया जाता है, साउंड को एम्पलीफाई किया जाता है. साउंड इज एम्पलीफाइड बाय दिस. कैसे? साउंड जो इसमें, जैसे मैं नॉर्मल अभी बोल रहा हूं, तो आप वही सुन रहे हैं जिस इंटेंसिटी के साथ मैं बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है. जैसे यहां से मैं बोलूं हेलो, तो ये साउंड जाएगा हेलो, टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद निकलेगा. और ऐसे कई साउंड होंगे जो टकरा टकरा के निकलेंगे, टकरा टकरा के निकलेंगे, कई सारे साउंड. तो ये साउंड जो होगा वो क्या बन जाएगा? लाउडर बन जाएगा. इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी. एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता हो, तो फिर साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है. नॉर्मल जो यहां पे हेलो बोला जा रहा था और कोई सुन रहा है, और इससे निकलने के बाद जो है कोई सुनेगा, दोनों में डिफरेंस होगा. नहीं समझ में आ रहा है? पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, और उस टाइम देखो, आज इसका बहुत कम यूज है, मतलब है ही नहीं, क्योंकि आज हमारे पास माइक्रोफोन है. माइक्रोफोन में हम लोग साउंड कुछ बोलते हैं, और ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक कन्वर्ट करता है, और माइक को हम लोग लाउड स्पीकर से कनेक्ट कर देते हैं. फिर वो जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगेन साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, और साउंड दूर दूर तक जाता है. तो ये मतलब आज का कॉन्सेप्ट, माइक्रोफोन हमारे पास है, लाउड स्पीकर हमारे पास है. लेकिन जब हमारे पास माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर नहीं था, आप बात करो अकबर बिरबल के जमाने की, या बात करो वैसे जो राजा महाराजा वाला कॉन्सेप्ट था, डेमोक्रेसी नहीं थी, तो बहुत पुराने टाइम में जब हमारा साइंस बहुत डेवलप नहीं हुआ था, और जब हम सब इतने साइंटिफिकली डेवलप्ड नहीं थे, हमारे पास इतने सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस नहीं थे, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर टाइप, तो यही मेगाफोन यूज किया जाता था जब कभी राजा को कोई अनाउंसमेंट करवाना होता था. तो जैसे सपोज किया जाए, आप बहुत सारी कहानियां पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा कि राजा महाराजा को जब कभी कम्युनिकेट करना होता था अपने प्रजा से, तो या तो वो किसी हॉल में बुलाते थे, किसी मैदान में गैदर करते थे, फिर वो अपनी बात रखते थे. कभी कभार राजा लोग क्या करते थे कि कुछ मैसेज उनको कन्वे करना है, तो आज मोदी जी तो मन की बात कर लेते हैं, ठीक है, या आपके मोबाइल पर टेक्स्ट आ जाता है, वेबसाइट से आपका चीजें कम्युनिकेट होती हैं.
ट्विटर से चीजें कम्युनिकेट होती है, फेसबुक से होती हैं, चैनल्स से होती है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से होती हैं, न्यूज़पेपर से होती है। उस टाइम पे एक आदमी रखा जाता था और इस प्रोसेस को हम लोग कहते थे मुनादी। मुनादी करवाना मतलब टू मेक एन अनाउंसमेंट गिवन बाय द किंग, मुनादी करवाना। तो राजा, सपोज कीजिए कि राजा को अचानक मन किया कि आज पार्टी होना चाहिए, आज खुशी का दिन है, पार्टी होनी चाहिए। तो अब पार्टी होनी चाहिए, तो पार्टी में राज्य के जितने भी लोग हैं सब आएंगे और सबके लिए एकदम बढ़िया बहुत अच्छा व्यवस्था किया जाएगा, सबको खिलाया पिलाया जाएगा, सब नाचेंगे गाएंगे और घर जाएंगे। ये राजा का कॉन्सेप्ट अचानक से दिमाग में आया। राजा सुबह सोचा ऐसा कि सुबह 10 बजे उसको लगा कि आज शाम में 6 बजे रात का खाना हम खिलाएंगे, शाम में 7 बजे सबको बुलाएंगे और राजमहल में सब लोग आए, खाए पिए ऐश मौज करें और घर जाए। वो अपने राज दरबार में मंत्री से, पुरोहित से, सबसे पूछा और सब बोले हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, राज्य में जश्न मनना चाहिए, जलसा होना चाहिए, क्योंकि प्रजा बोर हो जाती है। तो अब राजा का ये हो गया फाइनल कि आज रात में करना है, सुबह 11 बजे ये डिसाइड हो गया, 10 बजे डिसाइड हो गया। तो अब राजा वो मुनादी करने वाले आदमी को बुलाएगा और बोलेगा पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दो, पूरे राज्य में मुनादी कर दो कि आज किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा रात में, किसी के घर खाना नहीं बनेगा रात में, सबको राजमहल में आना है और डिनर करना है। अब वो लेगा मेगाफोन, क्योंकि उसके पास माइक्रोफोन नहीं था उस टाइम पे, लाउड स्पीकर नहीं था, तो वो माइक्रोफोन, सॉरी नॉट माइक्रोफोन, इट इज मेगाफोन। वो मेगाफोन लेगा, ये वाला इसका ये हैंडल होता है, ऐसे पकड़ेगा और वो चिल्लाना शुरू करेगा, सुनो सुनो सुनो, आज राजा ने ये घोषणा की है, आज राजा ने ये घोषणा की है, दूर दूर तक आवाज जाएगा। ठीक है, राज्य में जितने भी लोग हैं सब शाम 7 बजे राजमहल आएंगे। अगर ये बात वो बिना मेगाफोन के हेल्प से बोले तो बहुत कम दूर तक वो जाएगा और उसको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौक पर, हर चौराहे पर जाके बोलना पड़ेगा। इसका यह फायदा होता था कि आवाज दूर दूर तक जाता था। पुराने टाइम में लोग अपने घर में होते भी नहीं थे ना, घर में क्या करेंगे, पबजी खेलेंगे। वो क्या करते थे, कोई लकड़ी काट रहा है जंगल में राज्य का एक आदमी, कोई उधर मछली पकड़ रहा है, कोई खेती कर रहा है, हर जगह आवाज पहुंचना चाहिए। तो वो यही यहां से चिल्लाया, सुनो सुनो सुनो, ये आवाज दूर दूर तक, सुनो सुनो सुनो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा, साउंड एम्पलीफाइड होगा, साउंड का इंटेंसिटी बढ़ेगा, साउंड का लाउडनेस बढ़ेगा, साउंड दूर दूर तक जाएगा। तो मेगाफोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट, मेगाफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर वर्क करते हैं और जिससे साउंड को एम्पलीफाई कराया जाता था पुराने टाइम में। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास बल्ब हॉर्न। और बल्ब हॉर्न भी आपने जरूर नोटिस किया होगा, स्पेशली इन द टाइम ऑफ समर, जब कभी आइसक्रीम वाला आता है तो वो एक रबर का इस तरीके का एक शेप होता है उसका, रबर का बना हुआ, जिसे वो प्रेस करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और बेसिकली जो कोनिकल आइसक्रीम जो बेचते हैं या फिर कुछ और भी जो ठेले खोमचे वाले होते हैं, कई कई पर तो ऑटो में, बस में भी ये यूज किया जाता है। तो यही बल्ब हॉर्न है। बल्ब हॉर्न जो है वो सिग्नल, मतलब आप कहें कि एक हॉर्न की तरह काम करता है। और उसमें क्या होता है ना कि रबर का पूरा एक कहे कि स्फेरिकल शेप होता है और उसको जब आप प्रेस करते हैं तो उस स्फेरिकल शेप में, जैसे ऐसा रबर का हुआ है और इसका अपना हैंडल और प्रेस किया जाता है, तो प्रेस किया जाएगा तो साउंड, अंदर के पार्टिकल टकराएंगे, कोलाइड होके बाहर निकलेंगे और कोलाइड होके जब बाहर निकलेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड होगा तो आवाज क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा। तो बल्ब हॉर्न भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ही साउंड पे ही वर्क करता है। और ये भी थोड़ा आउट ऑफ द ट्रेंड हो गया है क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसे वो एज अ हॉर्न यूज करते हैं। लेकिन अभी भी गांव में आइसक्रीम वाले बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बल्ब हॉर्न ही यूज करते हैं और बच्चे उस आवाज को पहचानते हैं। आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, ये आवाज कहां गया, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे तो फिर आप बड़ा मतलब कहें कि बहुत पसंद होता है छोटे बच्चों को आइसक्रीम, तो
समर के टाइम में दोपहर का 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, एकदम लू चल रहा है, घर में सब लोग सो रहे हैं, आप सोने का एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको नींद नहीं आती है दोपहर में, तो आपका खुराफाती दिमाग इधर उधर सोचते रहता है, या फिर आप कोई गेम खेल रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं या पढ़ भी रहे होते हैं, मम्मी पापा सब लोग सो रहे हैं घर में, दोपहर का आराम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बल्ब हॉर्न का साउंड होता है जैसे ही आता है ना, आपको याद आ जाता है कि 5 का सिक्का लेके जाना है और इसको खरीद के खाना है, तो वो आवाज आप पहचानते हैं, वही बल्ब हॉर्न है। और ये वर्क करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, और ये जो है आपका बल्ब हॉर्न, इसमें भी साउंड को एम्पलीफाई किया जाता है। थर्ड है स्टेथोस्कोप, जिससे आप बहुत ज्यादा अवेयर हैं। आप जब कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहला काम यही करते हैं, वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं और आपका हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि हार्ट बीट उनको क्यों क्लियर सुनाई देता है? स्टेथोस्कोप के हेल्प से। जैसे स्टेथोस्कोप का जो कंस्ट्रक्शन है आप देखे होंगे, ऐसा इस तरीके से होता है, और इसमें लंबा आप कहें कि वायर होता है या कहें कि ट्यूब होता है, और फिर यहाँ पे ये जो होता है मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये स्टेथोस्कोप है और ये डॉक्टर साहब अपने कान में लगाते हैं और साउंड सुनते हैं, और इस पार्ट को रखा जाता है हार्ट के ऊपर, ठीक है, और ये आपका ईयर। तो सवाल ये है कि हार्ट हमारा बीट कर रहा है 72 टाइम्स पर मिनट, ऐसा है ना कि नहीं है? तो नॉर्मली हम अपने हार्ट बीट को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेथोस्कोप लगाइएगा कान में, इस तरीके से स्टेथोस्कोप लगा लिया और किसी के हार्ट पे उसको रखें, तो आप बहुत क्लियर सुनेंगे, आवाज बहुत ही क्लियर ऑडिबल होगा, एकदम धक 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 धक, एकदम क्लियर आपको सुनाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से ये जो हार्ट पे जैसे ही रखा गया, ये जो मेम्ब्रेन हार्ट पे रखा गया, यहां से आपका हार्ट बीट चलना शुरू करेगा। हार्ट बीट चूंकि एक साउंड है तो वो प्रोड्यूस हो रहा है, और ये साउंड यहां से चलेगा, और ये बार 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 जो रबर का ट्यूब है इसमें ये टकराएगा। और मैंने आपको बताया ना कि जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ साउंड होगा तो साउंड का इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, और मल्टीपल टाइम ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कान तक जाएगा और क्लियर आपको सुनाई देगा, ठीक है। और ये काफी मतलब मैंने कई स्टेथोस्कोप खराब किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो क्लिनिक पे तो उनका होता ही है स्टेथोस्कोप और ये सारा, और कई एमआर और ये लोग आके देते भी उनको। तो वो क्या करते थे ना कि मतलब सारा एपरेटस घर पे भी रखते थे, कि जस्ट लाइक आप रात में 10 बजे क्लिनिक से आए और कोई मोहल्ले का पेशेंट आ गया या कोई जान पहचान का आ गया और उसकी तबीयत खराब है, तो फिर वो घर पे भी मेडिसिन देते हैं अभी भी, और वो एक तरह का समाज सेवा है उनका। तो हम लोग क्या करते थे कि दोपहर में तो पापा क्लिनिक है, ठीक है, जब मैं बहुत छोटा था, मैं, उसके बाद मेरी छोटी बहन और एक मेरा छोटा भाई, ये 3 हम लोग हैं जो घर के 3 बंदर थे उस टाइम पे, जब मैं क्लास 6 या 7 में होता था, और ऐसे ही वो 5 में है और छोटा भाई 3 में है, ऐसे करके। तो हम लोग का ये खिलौना था, हम लोग खूब खेलते थे पूरे दोपहर इससे। कैसे खेलते थे कि एक कोई आदमी लगा लिया इसको ईयरफोन की तरह, और दूसरा का हार्ट बीट सुन रहा है, लेकिन हार्ट बीट सुनते सुनते तो आप बोर हो जाएंगे ना, तो फिर क्या वो करते थे हम लोग कि उसको बोलते थे किसी एक को कि तुम गाना गाओ, जैसे मैं अपनी सिस्टर को बोल रहा हूं तुम गाना गाओ, इसको ये स्टेथोस्कोप सोच वो गाना गा रही है और हम मस्त इसमें सुन रहे हैं, ठीक है। खराब कैसे करते थे हम लोग इसको, क्यों हो जाता था कि सपोज वो गा रही है, मैं सुन रहा हूं, फिर मैं गा रहा हूं, वो सुन रही है। अब छोटा भाई को थोड़ा कम इज्जत देते थे हम लोग क्योंकि वो छोटा था, ठीक है ना, जनरली ये होता है। उसको बोला अरे यार ये सब बड़ा खिलौना है, इससे तुम क्या खेलेगा, तुम अपना झुंझुना लो उससे खेलो, या फिर कुछ अपना खिलौना विलौना वो सब होता है ना, टॉय जो कार वार होते हैं वो सब चलाओ। लेकिन वो तो नहीं है, मेरे को सुनना है, मेरे को इसी से खेलना है, क्योंकि तुम लोग दोनों खेल रहे हो, मेरे को लग रहा है कि ऐसा तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। तो फिर हम लोग बोलते अच्छा बेटा, तो उसको क्या बोलते करते थे हम लोग कि ठीक है लो लगाओ। अब उसके कान में दोनों लगे, और अब हम लोग ऐसा करते थे कि हार्ट बीट नहीं सुनाते थे उसको, ना ही गाना गाते थे। उस हार्ट बीट, ये जो मेम्ब्रेन है उस पे किसी चीज से, सपोज पेन हो गया या कुछ ऐसा ही, कुछ भी ऐसा स्टिक टाइप का हो, और उसे ठक 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 मारते थे, ठीक है। तो वो बहुत तेज आवाज होता है, ठीक है, आप कभी ऑब्जर्व करना, बहुत ही ज्यादा तेज, ऐसा आपको फील होगा कि कान फट जाएगा,
वो तुरंत निकाल के देता था, नहीं नहीं लो यार तुम ही लोग खेलो, मेरे वो नहीं है। तो ऐसे ही मार मार के हम लोग वो मेम्ब्रेन जो होता है वो खराब हो जाता था। फिर कभी कभार ऐसा होता था कि पापा लगा रहे हैं, हार्ट बीट ही नहीं सुनाई दे रहा है, तो हम लोग बता भी देते थे कि ऐसा आप मत समझ लीजिएगा कि पेशेंट का हार्ट बीट ही नहीं है, मतलब पेशेंट इज नॉट डेड। तो इसमें क्या है ना कि ये बना है एक ऐसे साउंड को सुनने के लिए जो इंफ्रासोनिक, ऑलमोस्ट इंफ्रासोनिक क्या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो, 20 हर्ट्ज से भी कम हो। तो जैसे ये जो है हमारा, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है हमारा हार्ट बीट का, इसलिए सुनाई नहीं देता है हमें। तो यहां पे तो हम लोग एम्पलीफाई करके सुनते हैं, लेकिन जो साउंड ऑलरेडी तेज है, कहीं पे किसी चीज से मारना, पेन से आप मेम्ब्रेन पे मारेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा वो, मतलब इनफैक्ट वो खराबी हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब इसका काम क्या है ना, ये साउंड को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। बहुत ज्यादा क्यों? क्योंकि वायर बहुत लंबा है। वायर जब बहुत लंबा है तो मल्टीपल 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 टाइम्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा ना, होगा या नहीं होगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इसको छोटा कर दिया जाए काट के और यहीं लगा दिया जाए तो क्या उस तरीके का क्लियर साउंड सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। और यही तो हम लोग करते हैं, मैंने तो फिर भी छोटा बनाया है। आप देखोगे स्टेथोस्कोप का वायर लंबा होता है, उसका जो ट्यूब होता है, रबर ट्यूब, वो लंबा होता है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि स्टेथोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है, यहां साउंड को एम्पलीफाई कराया जाता है और हार्ट बीट को इजीली सुना जाता है। आगे है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड के बारे में क्या है कि ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है। जैसे जो बड़े बड़े कंसर्ट हॉल्स होते हैं, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, वहां पे क्या किया जाता है कि साउंड बोर्ड लगाया जाता है। सर है क्या ये कॉन्केव शेप का होता है, ऐसा शेप का, और ये लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है? किसी भी स्पीकर के जस्ट पीछे। कोई यहां पे खड़ा होके या बैठ के बोल रहा है तो इधर ये लगा दिया गया। ऐसा इसलिए कि चीजें सबको क्लियर सुनाई दे, क्योंकि क्या है ना कि ऑडिटोरियम में या फिर सिनेमा हॉल में या इस तरीके के कंसर्ट हॉल्स में क्या होते हैं ना, जो भी जितने भी बड़े बड़े ऑडिटोरियम हॉल है, ये सब जहां प्रोग्राम होता है, वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं। तो बहुत सारे एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होने की वजह से साउंड काफी एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो इसीलिए ये लगाया जाता है। अब इससे क्या होता है ना, ये साउंड यहां टकराएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, फिर ये टकराया यहां, ये भी पैरेलल हो जाएगा, फिर टकराया यहां, ये भी पैरेलल हो जाएगा, फिर टकराया यहां, ये भी पैरेलल हो जाएगा। और ये जा कहां रहा है? कहां जा रहा है ये? जहां पे कौन बैठे हुए हैं? ऑडियंस बैठे हुए हैं। तो ऑडियंस को बड़ा क्लियर साउंड सुनाई देता है। साउंड बोर्ड भी किस पर काम कर रहा है? इनफैक्ट ये तो मैंने आपको कहा बाहर से इंस्टॉल करने को ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कई सारे कंसर्ट हॉल्स जो होते हैं, ऑडिटोरियम्स जो होते हैं, प्रोग्राम हॉल्स जो होते हैं, सिनेमा हॉल्स जो होते हैं, उनका जो शेप होता है ना सीलिंग का, वो कॉनकेव शेप होता है। ऐसा सीलिंग होता है उनका, ऐसा। आपने कहीं नोटिस किया क्या? एसके मेमोरियल हॉल पटना कोई नहीं गए हैं? आप जब कभी जाएंगे तो आप देखेंगे उनका सीलिंग ऐसा ही है। तो उसका पर्पस यही है कि साउंड टकराए और सबके पास आए। तो ये साउंड जो है उसको एम्पलीफाई कराया जा रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के हेल्प से। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट साउंड बोर्ड का। तो ये 4 एप्लीकेशंस हम लोग देखे, स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड, बल्ब हॉर्न और मेगाफोन, ये सब के सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही है। नेक्स्ट डे हम लोग एको शुरू करेंगे और फिर कैलकुलेट भी करेंगे कि एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेवर्बरेशन क्या है, उसे कैसे रिड्यूस करते हैं, और भी कई सारी बातें। लेकिन आज यहीं तक है और वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज whatever we have done for today, and you all have to you all have written the question, you have to write the answer, and you need to send me on WhatsApp. First topic we had for today, absorbers of sound and reflector of sound. Second one, what is reflection of sound. Third one, laws of reflection of sound. Fourth one, applications of reflection of sound, and last one, terms related to reflection of sound. Actually it was on third. So first, absorber of sound and reflector of sound, the materials which absorb sound
are known as absorbers of sound, and the materials which reflect sound are known as reflector of sound. You can write the examples. In absorber of sound, you can write bed sheets, cloths, sofa covers, curtains, etc. And reflectors of sound, the hard materials, for example, you can write the metal block, the wood, the walls. These are the examples of reflectors of sound. Thereafter, there was very important topic, what is reflection of sound. Whenever sound comes from a medium, it strikes on a surface and bounces back in the same medium, then this natural phenomenon is called reflection of sound. इसे हिंदी में हम लोग ध्वनि का परावर्तन कहते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन्स ध्वनि का परावर्तन. परावर्तन टकरा के लौटना. There are terms. Incident sound wave, the sound wave coming from any source is called incident sound wave. Reflected sound wave, the bounced back sound wave is known as reflected sound wave. Normal, the perpendicular on the surface is known as normal. Angle of incidence, the angle between incident sound wave and normal is called angle of incidence. Angle of reflection, the angle between reflected sound wave and normal is called angle of reflection. Point of incidence, the point at which sound incidents, or we can define it as the point on the reflector at which incident sound wave falls is called point of incidence. There are two laws of reflection of sound. First, incident sound wave, reflected sound wave and normal all lie in same plane, and second, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Last one, there are 4 applications of reflection of sound. First one, megaphone. Second one, bulb horn. Third one, stethoscope. And fourth one, soundboard. So that's all for today. If you have any doubt, please ask to me.